On Sunday morning here in Vadodara, as we are all set for yet another quarter-final clash in the Vijay Hazare Trophy. 24-25, it's Vidarbha taking on Rajasthan, and it was Vidarbha that won the toss and opted to bowl first. Led by Karun Nair, the second highest run scorer, Jitesh Sharma, Dhruv Shori, and you look at Yash Thakur and Darshan Nalkande, all with good form. They got exciting batting unit at the top of the order. They will be having the services of Abhijit, who recently scored a lot of runs for Rajasthan. Shubham Gadwal is another exciting prospect. They got two international stars with ball in hand, Deepak Chahar and Khalil Ahmed. Abhijit Tomar. Manu Suthar, for a change, has been asked to open the batting because he batted well in the previous game. Darshan Nalkande गेंदबाजी करेंगे. One slip in position. A little bit of swing in the air. किया है अपने पैच पर से, और ये इस मुकाबले का पहला चौका रहेगा. Got it fine, Manu Suthar will run away to the fence for 4. Edge is found, catch is taken. It's given out, Tomar is gone. He's out, caught in the slips. Rajasthan lose their first. 7 ओवर में राजस्थान 15 पे 1, and Mahipal Lomror, the skipper, is now out in the middle. थोड़ा सा खराब लाइन, इसका फायदा मिलेगा. ये बाउंड्री आती हुई फिर से बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव शोरे जिन्होंने लगातार दूसरा कैच पकड़ा है, इससे पहला कैच भी स्लिप में उन्होंने पकड़ा था, और एक और सफलता दिलाते हुए 6 रन बनाकर आउट. 19 विकेट के नुकसान पे राजस्थान. Deepak Huda, 3,000 plus runs in his list A career. Just a bit of width, smacked, and has this gone past the fielder? Yes, it will run away for 4. इस बार थोड़ा सा जोखिम लिया, बाउंड्री हो जानी चाहिए. जी हाँ, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, और ये पहला बड़ा शॉट आता हुआ. Got it fine, picks up boundary. से पीछे हटे पोल किया है, और इस चौके की मदद से अरशद की साझेदारी पूरी हो गई. फिर से हवा में गेंद है, फील्डर पीछे थे, थोड़ा सा मौका जरूर था, लेकिन कैच कर नहीं पाए. Dances down and clears the rope, लेकिन विकेट के मामले में नहीं. और यहां पर मौका, छकाया लाइन से, वाइड रहेगी, लेकिन स्टंपिंग हुई है. महिपाल लोमरोर. He's dismissed for 32. The partnership has been broken. Rajasthan 3 down now for 90. Shubham Gadwal, left-handed bat, is an attacking batter. Big shot, humongous. It's gone high into the trees for 6. Takes the edge, takes the thick edge down to third. 4 runs. पीछे की तरफ, और बहुत बड़ी अपील. शायद अतिरिक्त उछाल, यहां पर रन आउट का मौका, और रन आउट भी हो सकता है. मिसकम्युनिकेशन अपील पर. Yes, it's pad first. Can I have ball tracking when ready, please? Okay, pitching outside off, impact in line, wickets, umpire's call, original decision not out. Ready with my decision for the big screen. एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ही सही, यहां पर विकेट जरूर मिला है विदर्भा को. कार्तिक शर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. ड्राइव किया है, डीप में फील्डर जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं कि उनकी बाईं तरफ से गेंद निकली है बाउंड्री के लिए. ओवर की आखिरी गेंद पर यह बाउंड्री आई है. हवा में एक बार फिर से बड़ा शॉट, और एक और छक्का, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ है. क्या मैदान के बाहर जाएगी? बिल्कुल बाहर नहीं, बहुत बाहर गई है ये. फिर से थोड़ा स्लो था गेंद, ये इस बार कनेक्शन ठीक बैठता है अथवा नहीं, बैठ गया. Once again, but this time Thinkish outside edge will run away for 4. He wouldn't mind. फिर से बड़ा शॉट खेला है इनके खिलाफ, अच्छा चार्ज किया है. फिर से बड़ा शॉट खेलने गए हैं, और एक और बाउंड्री आ गई. 50 का आंकड़ा पार कर दिया इस चौके की मदद से.
लीजिए, इस बार कार्तिक ने कहा कि ग्रेवाल जी आप नहीं तो मैं ही सही, लेकिन इस बार कार्तिक ने अब लगता है जिम्मेवारी ले ली अपने कंधों पर। Full driving, wonderful ball striking from Shubham Gadwal. लीजिए, इस बार पटका है, पुल किया है, डीप में फील्डर तो मौजूद हैं, और जब मौजूद हैं तो फिर कैच भी पकड़ेंगे। और ठाकुर को मिली है दूसरी सफलता, और सेट बैट्समैन शुभम ग्रेवाल 59 रन बनाकर आउट हुए। 195 5 विकेट पर राजस्थान। नए बल्लेबाज समर्पित जोशी। कार्तिक जारी रखे हुए रन बनाने का सिलसिला। The over reverse, beautifully executed. Sharma goes through extra cover, bludgeoning it hard. गति में परिवर्तन और यहां पर चौका मिलेगा। Turns away on the onside. He's going to take a single. It's a half century for Kartik Sharma. Smacked through the onside. That's a mighty connection. बड़ी अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी, और साथ ही साथ रिव्यू भी यहां पर। Pitching outside off, impact in line, wickets hitting, original decision out. Abhijit, you can stay with your original decision. Please make the signal. आउट रहेगा यहां पर कार्तिक शर्मा। 62 रन बनाकर जा रहे हैं। 50 रन की साझेदारी टूटी यहां पर। 245 पे 6। Deepak Chahar. Pulled it majestically. पर फिर से अपील नलकांदे की, गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी। फिर से गति परिवर्तन, लेकिन सीधी दिशा में खेला है, और चौके के लिए 2 फील्डर थे, और चौका यहां पर। Joshi with the innovative shot. Straight to the fielder. Thakur strikes again. फिर से गति में वही परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, पूरा ओवर ही उसी तरीके से कराया है। जोशी यहां पर 23 रन बनाकर आउट। 20 गेंदों का सामना किया था उन्होंने। राजस्थान 264 पे 7। Ajay Singh Kukna. लेग साइड की दिशा में थी गेंद, और फाइन लेग ऊपर था, ऑफ स्टंप के बाहर थी। ये मौका दिया हाथ खोलने का, और खोल दिए हाथ। और अब यश ठाकुर के आखिरी ओवर की शुरुआत, और यहां पर शुरुआत हुई है चौके के साथ। इस बार कनेक्ट किया है, कट किया है, और चौका मिलेगा। Full toss, lobbed it down the ground, and is taken. 4 विकेट के साथ देखिए फुल टॉस रहा। दीपक चहर ने कोशिश की फायदा उठाने की, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। दीपक चहर 30 रन बनाकर आउट। Tremendous recovery from Rajasthan after 27 for 2 in the first 10 overs. In the power play overs where conditions were conducive for the fast bowlers, they bowled expertly. With Darba, they need 292 runs to win in 50 overs at the rate of 5.84 runs per over. Dhruv Shore 2,370 runs. And then Yash Rathore 682, 24 years old, 89 wickets of 66 matches, 32 years old. शुरुआत हुई है रन की। ऑफ स्टंप के ऊपर थी गेंद, स्विंग होकर अंदर की तरफ आ रही थी। डीप में प्रोटेक्शन नहीं है, उसका फायदा मिल रहा है यहां पर। दूसरी बाउंड्री इस ओवर में आई है। इस बार मिल जाएंगे, इस बार जरूरत पड़ेगी नहीं। Drives this one past the fielder. No stopping that one. This will be 4. 6 फील्डर पर गैप मिला है, और अब ये रन बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कह सकते हैं। स्वागत किया उनका आते ही, कलाइयों के साथ खेला इस गेंद को राठौड़ ने, और बाउंड्री के साथ वेलकम किया। इस बार गैप में केवल गेंद को बाहर जाते ही देखेंगे। महंगा ओवर हो गया पहले ही। Slammed through the offside. He's found the gap. It's gone for 4. Width given and cut away fiercely for 4. ये तो बाउंड्री हो जाएगी। ओवर पिच गेंद है, शोरे ने ज्यादा कुछ किया नहीं।
हवा में खेला है यहां पर और सीधा फील्डर के हाथ में जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो मिल गया है। अजय सिंह कुगना ने दिलाई है विकेट अपनी दूसरी ही गेंद पर और यश राठौड़ is dismissed for 39, 92 for 1. करुण नायर नए बल्लेबाज विदर्भा के कप्तान, आसानी से स्वीप किया और यहां पर चौका मिलेगा। Getting the ball to cut and takes a single. Half century, good half century. Struggled initially and played shots all around the ground. 50 of 67. Pull this time in the air and over the field at the rope, and Shorey will get a 6 for it. End of the over, 116 for 1. Pitched it from outside off stump, pulled it, and he will get a boundary. इस बार कंधों कदमों का इस्तेमाल किया, डीप में फील्डर मौजूद हैं लेकिन वो केवल दर्शक बने रहेंगे। लीजिए एक और बाउंड्री आ गई, महंगा ओवर आ गया ये, 50 रन की साझेदारी भी हो गई। Pulled, belted away into the fence for 4. Shot and pulled away. Another cracking shot. फिर से शॉर्ट गेंद था, पुल किया और ऐसा लग रहा है तोहफे में दे रहे हैं ये। बैकफुट से गए, फिर से शॉर्ट गेंद थी और देखिए 4 सिंगल लगाए थे, आखिरी गेंद पर आपने बाउंड्री दे दी। Playing with a soft hand, hesitation, eventually going for a single. और करुण ने साथ ही अपना शतक पूरा किया है, कप्तानी पारी खेली है, 48 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। Pulled behind square for 4. Lobs the ball away. Good strike. लीजिए करुण नायर हैं, बाउंड्री लगाई, इसके साथ ही 200 का आंकड़ा पार करा दिया। क्या ये भी बाउंड्री होगी? लीजिए Easily worked away on the onside for a single. Well, it's gone for 4. Pulled powerfully. Reverse employed and successfully too. ड्राइव यहां पर शौरी के बल्ले से कवर की दिशा में और उस चौके के साथ शतक अपना पूरा किया। इस वर्ष के विजय हजारे ट्रॉफी में पहला शतक ग्रुप शौरी का क्वार्टर फाइनल में। एक और पुल शॉट, आज भरमार लगाई है, छक्का यहां पर करुण नायर के बल्ले से। Shot, uppercut, beautifully struck. He kept his eyes on the ball and sent it to the boundary for 4. Brilliant, absolutely brilliant. किया यहां पर और चौका मिलेगा। करुण नायर का एक और शतक इस सीजन के विजय हजारे ट्रॉफी में, और देखिए डगआउट में किस प्रकार से खुशी की लहर। Amazing, astonishing, incredible innings from Karun Nair. A lofted stroke straight down the ground. A glorious hit for 6. एक और बार आगे बढ़कर जल्दी खत्म करना चाहते हैं अब। चौका। Another astonishing stroke. Outrageous batsmanship from Karun Nair. एक और चौका ओवर की समाप्ति के लिए। और इस बार जो पुल किया है यहां पर चौका आएगा, मौका मिला और चौका लगा, और उसी के साथ विदर्भा की जीत, 7वीं लगातार जीत, 7वीं बार चेस किया है। Dominating 9-wicket victory for Vidarbha as they storm into the semi-finals. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने ऐसे विचार लेकर आता हूँ, ऐसे कहानियाँ लेकर आता हूँ जो आपको अध्यात्म से जोड़ता है, आपको आपके अंदर की खुशी को ढूंढने में मदद करता है, आपको रियल खुशी देता है और आपको अपने आप से मिलाने में मदद करता है। तो ऐसी ही कहानी और विचार मैं आपके सामने आज भी लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
कहानी है मन का मौन जरूरी। यदि हम कुछ भी समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे मन को शांत होना चाहिए। जबकि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसकी चिंता में डूब जाते हैं, है ना। हम उसकी छानबीन करने लगते हैं, उसके विश्लेषण में जुट जाते हैं, उसकी ऐसी तैसी कर डालते हैं, और यह सब इस उम्मीद से कि हम उसको समझ पाएंगे। मगर क्या किसी मानसिक उठापटक के जरिए हम कुछ समझ पाते हैं? निश्चित ही समझ तभी आता है जब मन बिल्कुल खामोश होता है। कहा जाता है हम जितना अधिक भूखा या युद्ध के प्रश्न से अथवा किसी भी मानवीय समस्या से जूझेंगे, शताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं, उतना ही अधिक उसको समझ पाएंगे। क्या यह सच है? शताब्दियों से युद्ध हो रहे हैं, व्यक्तियों के बीच, समाजों के बीच द्वंद्व बना हुआ है, आंतरिक और बाहरी जंग जारी है। क्या उस युद्ध का, उस द्वंद्व का निपटारा हम और अधिक द्वंद्व या संघर्ष से, किसी चालाकी भरे प्रयत्न से कर सकते हैं? हम समस्या को केवल तभी समझ पाते हैं जब उसके सामने होते हैं, जब हम तथ्य का सामना कर रहे होते हैं। और किसी तथ्य का सामना हम तभी कर पाते हैं जब मन और तथ्य के बीच बाधा उत्पन्न करने वाला कोई विक्षोभ नहीं होता। अतः यदि हम समझना चाहते हैं तो क्या जरूरी नहीं कि मन मौन हो। आप कहते मेरा मन क्षुब्ध है, इसे कैसे शांत रखूं? क्या कोई पद्धति मन को शांत कर सकती है? क्या कोई अनुशासन इसको मौन कर सकता है? ऐसा किया जा सकता है, परंतु जब इस प्रकार मन को शांत बना दिया जाएगा तो क्या वह मौन होगा? क्या निश्चलता होगी? या वह मन को किसी विचार, किसी सूत्र, किसी शब्दावली में जकड़ लेना होगा? ऐसा मन तो मृत मन होगा। अधिकांश व्यक्ति जो तथाकथित आध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं मृत प्राय होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन को शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया होता है। शांत रहने के लिए उन्होंने अपने आप को किसी नुस्खे में कैद कर लिया होता है। स्पष्ट है, ऐसा मन कभी मौन नहीं होता, उसे केवल दमित कर दिया गया है, दबा दिया जाता है। मन केवल तभी मौन होता है जब वह इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है जब मन मौन हो। यानी यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो मुझे शांत होना होगा, मुझे आपको विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न हो, मैं पूर्वग्रहों से मुक्त हूँ, मुझे अपने समस्त निष्कर्षों, अनुभवों को हटाकर आपके समक्ष आना होगा। जब मन संस्कार ग्रस्ता से मुक्त होता है, केवल तभी मेरे लिए समझ पाना संभव होता है। जब मैं इस बात को, सत्य को देख लेता हूँ, तभी मन मौन होता है, और तब यह प्रश्न नहीं उठता कि मन को शांत कैसे बनाया जाए। इस लेखन को लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। और जो विशेष बात है, जब व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है कि समझ तभी संभव है जब मन मौन हो, यानी यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो मुझे शांत होना होगा, मुझे आपके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो यह लेखन आपको कैसा लगा? मन का मौन होना क्यों जरूरी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे विचार की ओर। भक्त को संशय नहीं होता। भागवत में लिखा है कि सुदामा जी जब भगवान के यहाँ से चले तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया, कुछ दिया, किंतु कुछ नहीं दिया। दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि अब आपके यहाँ नहीं आऊँगा। क्या आप मित्र हो? मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ नहीं दिया। मगर जैसा द्वारकाधीश कृष्ण, तो सुदामा भी द्वारकाधीश है। भले महल नहीं है, शास्त्रों में ने लिखा है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वह ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था प्राप्त है,
वही श्रद्धा की अवस्था प्राप्त है जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त है। तो सुदामा जी ने मांगा नहीं कुछ भी। आज का कोई होता तो हंगामा ही कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते। संपूर्णता में जिसको सब कुछ प्राप्त है उन्हें ही भगवान कहते। भग माने संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण। भगवान की गरीबी कैसे आएगी? वह तो समग्र धर्मशाली धनशाली है। ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार है, कल्याणकारी गुणों के समुद्र है। प्रेम लगाओ शक्ति के समुद्र है। भगवान कभी पाप नहीं करते, किंतु दुर्भाग्य हमारे मन में आते हैं, उसका मूल कारण पाप ही है। चाहे क्रोध हो, लोभ हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है पाप। भगवान कैसे अनुदार हो जाएंगे? वह तो परमोदार है। सुदामा जी ने समाधान निकाला, अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारा जो समष्टि के लिए समर्पित जीवन है, रोम रोम में बाहर से भीतर से हमारा जो समुदाय ही सेवा के लिए जीवन है, उसे कहीं हम अलग ना हो जाए, कहीं हम भोगी ना हो जाए, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाए, कहीं हमारा भजन न छूट जाए। इसलिए भगवान ने नहीं दिया, कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, कहीं हम भगवान के लिए जीना छोड़ अपने लिए न जीने लगे। इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। यह विचारों की महान अवस्था है, इससे बड़ा व्यवहार क्या होगा? सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान किया। अब तो लोग ऋण लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। यह तो द्वारकाधीश ने अद्भुत प्रेम की वर्षा करके समर्पण की धारा बहा दी। और इस लेखन को लिखा है रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य ने। तो आपको ये लेख कैसा लगा, ये भी कमेंट करना ना भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लेख की ओर। स्वामी जी ने जिन्हें बुलाया था इंडिया। बंगाल में अपनी जन्मभूमि से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के ट्रेडाइट शहर में एक भवन के बड़े कमरे में स्वामी विवेकानंद विराजमान थे। शिकागो की विख्यात धर्म सभा में वह भारतीयता का ध्वज लहरा चुके थे। भारत के अद्भुत युवा सन्यासी जिसकी उम्र 31वें वर्ष में प्रवेश कर गई थी, भगवा चोले में शांत भाव से प्रवचन कर रहे थे। यह समझा रहे थे कि दिल और दिमाग के बीच अक्सर जंग छिड़ जाती है। दिल कहता है ऐसा करो, दिमाग कहता है वैसा करो। ध्यान रहे, जब भी ऐसा मौका आए और किसी फैसले पर पहुंचने में मुश्किल आए तो दिल की सुनना है। सुनने वालों में शामिल एक युवती खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस परिस्थिति का व्याख्यान स्वामी जी कर रहे थे वैसी स्थिति अक्सर पैदा होती थी। वह इस व्यवहारिक ज्ञान के बहाव में बहने लगी थी। स्वामी जी के ज्ञान की लड़ी टूटती न थी। अब वह समझ रहे थे कि खुद को कमज़ोर समझना पाप है। यहाँ भी युवती को लगा कि यह बिल्कुल मन की बात है। वह खुद को बहुत कमज़ोर समझती है। पिता का जब सिर से साया उठा तब उसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी। वह बच्चों को पढ़ाकर किसी तरह से घर चलाने लगी। युवती को उसी क्षण लगा कि स्वामी जी के पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसे पिता से भी बढ़कर एक महापिता मिल गए हैं। कितना मधुर बोलते हैं। वह सोचने लगे कि मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, इतनी असली सुरीली। यह तो मेरे लिए भगवान की आवाज़ है जो सुखद अनुभूतियों का सागर रच रही है, ज्ञान का सतत संगीत है। कहाँ से आए हैं ऐसे स्वामी जी?
स्वामी जी अपने देश का नाम कितना सुंदर उच्चारण करते हैं, इंडिया। यह कितना अविश्वसनीय पर शाश्वत है। 5 अक्षरों के छोटे से शब्द में कितना कुछ डाल दिया गया है। जोश, जुनून, जज्बा, स्वाभिमान, आकांक्षा, आराधना, पीड़ा, शालीनता और ढेर सारा प्यार। इंडिया, माय इंडिया। पहली भेंट से स्वामी जी से मन ऐसे जुड़ा कि वह प्रवचन सुनने रोज पहुंचने लगी। वो कोशिश करती कि स्वामी जी का एक भी शब्द अनसुना न रह जाए। खैर एक दिन आया जब स्वामी जी ने टेडाइस से 700 किलोमीटर दूर थाउजेंड आइलैंड पार्क में शिविर लगाया। कुछ ही दिन बीते थे, वह युवती अपनी एक महिला के साथ फिर स्वामी जी को सुनने निकल पड़ी। जब खूब बारिश हो रही थी, वह भीगती चली जा रही थी। कहीं रुकती तो वक्त बर्बाद होता। जब जो स्वामी जी ने देखा तो कहा, ओ क्रिस्टियन ग्रीनस्टर्डल, तुम इतनी दूर से आ गई। क्रिस्टियन ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीसस से मिलने के लिए इतनी दूरी तय करना कुछ भी नहीं है। तब भाव भरा उत्तर मिला था, अगर जीसस जैसी आध्यात्मिक क्षमता मुझ में होती तो तुम्हें इसी क्षण मुक्ति दे देता। वह स्वामी जी जितने दिन रहे, क्रिस्टियन भी रही। उनके जीवन में ध्यान योग का सहज समावेश हुआ। स्वामी जी कहते थे, क्रिस्टियन अत्यंत पवित्र आत्मा है, उसमें एक भी दोष नहीं है। वही क्रिस्टियन ने गुरु दीक्षाली और ब्रह्मचर्य का संकल्प भी सहर्ष लिया। स्वामी जी कहते थे, क्रिस्टियन तुम्हें भारत आना ही होगा, वहाँ बहुत काम है, वहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। स्वामी जी भारत आ गए। क्रिस्टियन भी भारत आने वाली प्रबल इच्छा थी, पर 5 छोटी बहनों की देखरेख और वृद्ध माता की सेवा का दायित्व था। उसके बाद जब संसार से विदा हुई तब वह 8 वर्ष इंतजार के बाद 7 अप्रैल 1902 को भारत पहुंची। बेलूर मठ में स्वामी जी मानो प्रतीक्षा ही कर देते हैं। योग की जो भी शिक्षा शेष थी, स्वामी जी ने सप्ताह भर में क्रिस्टियन को प्रदान कर दी। स्वामी जी को संसार से जाने की बड़ी जल्दी थी। उसी साल 4 जुलाई को उन्होंने प्राण त्याग दिया। गुरुदेव के आदेश से क्रिस्टियन यही भारत में रहकर सिस्टर निवेदिता के साथ बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। प्रचार प्रसार से सदैव दूर रहने वाली संकोची, शर्मीली, निर्मल संत सिस्टर क्रिस्टियन के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने छोटे से जीवन में 750 से ज़्यादा पत्र लिखे। उनमें से सर्वाधिक 90 पत्र उन्होंने क्रिस्टियन को लिखे। स्वामी जी ने अपनी इस प्रिय पुत्री के बारे में कहा था कि इन्हें इसी संसार में रहते मुक्ति का आभास हो जाएगा। क्रिस्टियन ने अमेरिका में जब आखिरी सांस ली तब वहाँ सेवा में मौजूद भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक वशिष्ठवर सेन ने लिखा कि संसार से जाते हुए बहन क्रिस्टियन के चेहरे पर दिव्य खुशी और तृप्ति की आभा देख बन रही थी। यह प्रस्तुति है गणेश उपाध्याय की। आपको ये लेख कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।